Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junani Bhilai, and today I am going to explain final accounts of companies. According to Section 129 of the Companies Act 2013, the financial statement of a company shall give a true and fair view of state of affairs of the company. Financial accounts of a company consist of two important financial statements. Number one, balance sheet of company, and second is statement of profit and loss. पहले बिफोर 2013 कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली कंपनी के अकाउंट बनते थे और उस समय हम वहाँ पर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट आफ्टर अमेंडमेंट और नया एक्ट आया 2013 में, तो उसके बाद से हम बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनाते हैं. पहले हम टी शेप में बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन अब वो टी शेप में नहीं बनता. एंड उस समय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ने अकाउंट बनता था, पर अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट अब हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट अब यहाँ पर हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ता. ये पहले के एक्ट 1956 और अकॉर्डिंग टू 2013 दोनों एक्ट में डिफरेंस है. What is the definition of balance sheet? Actually, balance sheet is a formal arrangement of facts and figures in an intangible manner showing the total value of assets owned and the total amount of liabilities owed by a business at the end of a particular period. It also known as statement of assets and liabilities, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर इसको शो किया जाता है. It reflects the financial position of a company at the end of a financial year. और ये फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो सकता है. ये 1 जनवरी टू 31 मार्च भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. Next is profit and loss statement. Statement of profit and loss is also known as income statement. ये स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये शो करता है कि उस बिजनेस की एक्चुअल इनकम क्या है और उसके एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, और दोनों को लेस करने के बाद में हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता लगता है. It is a statement of revenue earned and the other gain made, matched by the amounts spent to earn these revenues and the other losses suffered. Actually, profit and loss is a statement is a result of business operations during a particular accounting period, which indicates what progress has been made by the organization. And it also reflects the financial performance of an entity during a financial year. Final accounts and Companies Act. Important features of the Schedule 3 of Companies Act 2013 are: first one is, it is applicable to all companies excluding those companies for which specific formats are prescribed, such as an insurance company. जो ऐसी कंपनी जहाँ पे डबल एंट्रीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी और रॉयल्टी, ये सब यहाँ पर जिनके ऊपर की कोई और एक्ट एम्प्लॉय होता है, वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता. बाकी सारी कंपनीज पर ये एप्लीकेबल होता है. Second is, forms of profit and loss has been prescribed in part 2. पार्ट 2 में, इस एक्ट के पार्ट 2 में फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेस्क्राइब किया गया है. इंटरप्रिटेशन क्लॉज फ्रॉम पार्ट 3 बैलेंस शीट abstract is in part 4 and original schedule 6 has been removed from the
एक्ट, जो ओरिजिनल शेड्यूल था पहले 6, वो इस एक्ट से हटा दिया गया है। अब there are some general instructions for preparing final accounts, where compliance with the requirement of the act, including accounting standards as applicable to the companies, required any change in treatment or disclosure, including additions, amendments, substitutions or deletions in any head or subhead of any change in the financial statement or statement forming part thereof shall be made, and requirements of the schedule shall stand modified accordingly. Second is the disclosure requirement specified in the schedule are in addition and not in substitution of the disclosure requirement specified in the accounting standards prescribed under Companies Act 2013. Note to account shall contain information in addition to that presentation in the financial statement and shall provide, where required, as narrative descriptions or disaggregations of items recognized in those statements and information about items that do not qualify or recognizing in those statements. Each item on the face of the balance sheet and statement of profit and loss shall be cross-referenced to any related information in the notes to accounts. In preparing the financial statement, including the notes to accounts, a balance shall be maintained between providing excessive details that may not assist user of financial statement and not providing important information as a result of too much aggregation. So this is the format of balance sheet. ये पार्ट 1 है बैलेंस शीट, जहाँ पर लिखा रहता है नेम ऑफ कंपनी एंड बैलेंस शीट एज एट ईयर एंडेड जो भी रहेगा, जैसे 31 मार्च 2017 है तो वो यहाँ पर लिखना है। देन जो कॉलम है नोट नंबर है, पर्टिकुलर्स एंड फिगर ऑफ करेंट ईयर फर्स्ट कॉलम है, एंड फिगर एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ये सेकेंड कॉलम है। इस तरह से 4 कॉलम रहते हैं। फर्स्ट वन होता है, सबसे पहले लायबिलिटी की करते हैं तो सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में 3 चीज़ें रहती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड जो है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी से कोई अगर पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ है तो वो वहाँ पर शो करते हैं। थर्ड है नॉन करेंट लायबिलिटीज़, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें ए लॉन्ग टर्म बारोइंग्स आता है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ आती हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो कि किसी भी तरह का जो टैक्स दिया गया है और उसमें और दूसरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लेखांकन के अंडर में जो दोनों का डिफरेंस रहता है उसके बेसिस पर वो डिफर्ड टैक्स अगर दिया है क्वेश्चन में तो आप उसको वहाँ पर ज़रूर मेंशन करते हैं, जो उसका एक्चुअल होता है जो डिफर्ड टैक्स उसको। उसके बाद में नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, इसमें कोई लोन या कुछ ये सब आ सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर किया गया है तो वो आएगा, जो भी आपको जो भी जैसा भी सिचुएशन रहेगा रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स होंगे, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अगर किया गया है तो ये सारी चीज़ें अगर इनका कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो नोट नंबर में आप 1 2 3 4 डालेंगे और उसको शो करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका होता है बैलेंस शीट का एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स,
गुडविल और ये सब इसमें आता है। कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट अगर कुछ है हो तो। फिर नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया है तो ये इसमें आएगा। देन डिफर्ड टैक्सेस, टैक्स एसेट्स अगर कुछ है तो कुछ रिटर्न हुआ है तो वो इसमें आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस कोई लॉन्ग टर्म एडवांस या कोई लोन दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोन दिया गया है, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और कोई एडवांस वो है। फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स जो भी हो। और सेकंड पार्ट इसका होता है, इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट में है इसका करंट एसेट्स, उसमें आएगा करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देन इन्वेंटरीज कि जो स्टॉक होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करेंट एसेट्स। तो इस तरह से दोनों का टोटल फिर वो इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर भी नेम ऑफ कंपनीज लिखा जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एट, जो भी एंडेड ईयर जो रहेगा और रुपीज में होता है तो इसको इस तरह से शो करते हैं। उसके बाद में इसमें जो है पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, देन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। बट ये नए फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इसमें अगर सेल्स दिया है तो सेल्स आएगा। अगर कई बार होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है तो वो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट में आता है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब अगर कोई शेयर से कोई डिविडेंड मिला या कुछ, तो ये इस तरह की कोई अदर इनकम दी हुई है जो कि कंपनी को मिली है तो वो अदर इनकम आएगी इसमें। उसके बाद में देन जो थर्ड रहता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं तो थर्ड पॉइंट है आपका टोटल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू हो गया और उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो होता है वो वहाँ शुरू होता है एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस होता है मेरे ख्याल से आपको ये जो टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम है ये समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन ऑपरेशन रहता है सेल्स वो, उसके बाद में अदर इनकम में जो आएगा लाभांश से या डिविडेंड से कोई इनकम हो रही है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई इनकम हुई है कंपनी को उस दशा में, ये सब आता है। और अगर कोई ऐसी आय जो संबंधित जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उससे कुछ इनकम मिल गई हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है और दोनों को ऐड करने से हमको टोटल रेवेन्यू मिलता है। फोर्थ में आता है इसका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन जो भी मटेरियल कंज्यूम किया है उसका कॉस्ट। उसके बाद में परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना परचेस या ओपनिंग जो स्टॉक रहता है या क्लोजिंग स्टॉक उसको देखते हैं यहाँ पर। फिर देन चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों इस दशाओं में इसको देखते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है जो भी जो सैलरीज होती है, वेजेस होता है एम्प्लॉयज़ का, अगर उनको वो आएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट में जो इंटरेस्ट होता है इसके ऊपर, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट, ये सब इसमें आता है फाइनेंस कॉस्ट में। देन फिर आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस रहता है। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं
एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं आप। उसके बाद में जितनी भी एसेट्स रहती हैं उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एंड अदर एक्सपेंसेस जो है उसमें जो भी अपने अदर एक्सपेंसेस में जो भी खर्च किया हो, जो भी रेंट कुछ भी दिया हो, अदर एक्सपेंसेस अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसमें अदर एक्सपेंसेस आता है। देन उसके बाद में फिर आता है प्रॉफिट। ये जो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, फोर्थ वाले कॉलम का टोटल एक्सपेंसेस आ गया। अब जो फिफ्थ पॉइंट रहता है वो रहता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला फिफ्थ पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है आपका टोटल रेवेन्यू, उसमें से फोर्थ पॉइंट टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने से हमको फिफ्थ पॉइंट मिलता है, वो है प्रॉफिट लेकिन बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। अब उसके बाद में अब जो एक्सेप्शनल आइटम्स अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है तो उसको हम लेस करते हैं, 6 पॉइंट पे वो आता है। देन फिर हम 7th पॉइंट पे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये करते हैं, और 5th - 6 यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो आया था आंसर हमारा, उसमें से हम 6 जो एक्सेप्शनल आइटम्स है उसको लेस कर देंगे तो हमको 7th वाला पॉइंट मिल जाता है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। देन उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस करोगे तो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जिसको 7th - 8th को लेस करने से। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें से अब हम टैक्स एक्सपेंसेस, करेंट ईयर का अगर टैक्स दिया हुआ है तो उसको लेस करेंगे, यदि कोई डिफर्ड टैक्स दिया हुआ है तो उसको भी लेस करेंगे। एंड देन उसके बाद में हमको 11th पॉइंट जो मिलेगा प्रॉफिट या लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस ये होगा 9th - 10th पॉइंट करने से जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा हमारा। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम इसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 12th में आता है, 13th में आता है टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, एंड 15th में आता है, उसको दोनों को 12th और 13th को लेस कर देते हैं तो वो 15th में आता है। तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आपका 15th में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड। और अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स यहाँ पर आप दिखाना चाहें तो ये 16th में आता है, बेसिक एंड ड्यूलेट। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे अपने अगले क्लास में, तो आपको ये समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको फॉर्मेट बताया मैंने, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।